Okay, good morning, students. Once again, and be ready with your notebook. And now, today our class for accountancy, I will teach you today the partner's capital account. Okay. So next, just be ready with your notebook. So, students, the chapter name is Admission of a New Partner and topic Partner's Capital Account. Okay, just write on your notebook. Today's topic is Partner's Capital Account, right? So, how to prepare Partner's Capital Account? Already you had studied in the previous chapter in change in profit sharing ratio. But this is the admission of new partner. When we prepare the partner's capital account, we will add one more column for the new partner's capital. Okay, and everything would be like that, same. So now, before starting the partner's capital account, do you have remember in the previous class, I have taught you the hidden goodwill. Priyanshu? Have you remember? Do you have remember? I have taught the hidden goodwill. Priyanshu, let us speak up. Utpanna. Utpanna. Yes, sir. Beta, I have taught you all hidden goodwill in previous class. Yes, sir. So steps do you have remember? Now in front of you one of the question. And Yes, what are sir. the beta, so what steps New should partner, we take? new Yes. partner partners capital into reciprocal of new partners there. Very good. So यहाँ पे who is the new partner? Sumesh. Yes, Hemant and Nishant were the old partner, na? Hemant yes, and Nishant were old partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their capital were rupees 1,60,000 and rupees 1 lakh, respectively. They admitted Somesh on 1st April 2013 as a new partner for 1/5 share, right? Somesh brought rupees 1,20,000 as his capital and calculate the value of goodwill of the firm and record necessary journal entries for the above transaction. Therefore, before starting the partner's capital account, just I am revising this topic because I have taught this topic in the previous class and you all have written the steps how to calculate hidden goodwill. So जैसा कि अभी उत्पन्ना ने बताया कि पहला स्टेप उत्पन्ना हम लोग क्या करेंगे, पेन पेपर है सभी लोगों के पास, सभी लोग बैठ जाओ पेन पेपर लेके. फर्स्ट स्टेप लिखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, लिखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना है 1,20,000, उसे लिखो, उसमें रेसिप्रोकल कर दो न्यू पार्टनर के शेयर का. न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, तो 5/1 कर दो. फटाफट करो सभी लोग. तो देखो कितना आ जाएगा 6 लाख. उत्पन्ना 6 लाख आया. yes, यस, वेरी गुड बेटा. अब दूसरा स्टेप क्या लेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर ना. टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट कौन सा होगा, रिलेटिंग टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व रीवैल्यूएशन. बट आप देखोगे इस क्वेश्चन में न तो रिवैल्यूएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है और ना ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसको इग्नोर कर दो. सीधे हम कैपिटल को जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे. सो देखो हेमंत का कैपिटल 1,60,000 है, निशांत का 1 लाख है और सोमेश जो आ रहा है उसका 1,20,000. तो तीनों को ऐड कर लो, फटाफट ऐड कीजिए. आप लोग देखिए कितना आ रहा है कैपिटल. दूसरा स्टेप होगा टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स. सो 161, 2,60,000 एंड 1,20,000, तो 3,80,000 हो रहा है. 3,80,000 हुआ. अनिरुद्ध? यस सर, हो गया है. सो अब थर्ड स्टेप जो होगा गुडविल ऑफ द फर्म. थर्ड स्टेप लिखो
हिडन गुडविल ऑफ द फर्म या गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, जो पहला स्टेप आपने लिया था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 6 लाख आया था, सेकेंड स्टेप आपने लिया टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स 3,80,000, तो माइनस कर दीजिए उसको आपस में, तो कितना आ रहा है? 2,20,000 सर। वेरी गुड, तो दिस विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। अब जब 2,20,000 हो गया, क्वेश्चन बोल रहा है जनरल एंट्री करने के लिए, तो ये 2,20,000 फर्म की गुडविल हो गई है ना। अब इसमें से करेंगे क्या कि नया पार्टनर कौन है? सोमेश। सोमेश का शेयर है 1/5, तो अब सोमेश का शेयर कैलकुलेट करेंगे गुडविल में कितना होगा, तो लिखेंगे सोमेश शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 2,20,000 इंटू 1/5। कैलकुलेट कीजिए आप सभी लोग, कितना आ रहा है? 45,000। कैलकुलेट करके बताइए अनिरुद्ध, 2,20,000 इंटू 1/5, सभी लोग कैलकुलेट कीजिए। ये सर कर दे सर, चलो सब बस बचे। एवरीवन, आशुतोष, श्रेया, प्रियांशु, पन्ना, आप लोग कर रहे हैं ना सॉल्व जैसे जैसे बताया? यस सर, 45,000 है सर। यस, वेरी गुड। तो 45,000 से हम क्या करेंगे? हिडन गुडविल के केस में न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैश नहीं लाता, तो आपको पता है जब न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा नगद नहीं लाता तो क्या करते हैं? न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्री पूरा करना है, पहली एंट्री तो कैपिटल की एंट्री करेंगे, 20,000, तो लिखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सुमेश कैपिटल, पहले लिखिए पहली एंट्री जो कि 1,20,000 वो ला रहा है। Just write it. I am stating the illustration. Cash account debit to Sumesh Capital 1,20,000 हो गया पहली एंट्री, डन। शेयर डन। Yes, sir. ओके, सेकेंड एंट्री लिखिए सुमेश करेंट अकाउंट डेबिट, सुमेश करेंट अकाउंट डेबिट बाय ₹45,000। 45,000 उसका शेयर आया ना गुडविल में, ठीक है, लिख लिया। अब लिखेंगे दिस गुडविल किसको मिलना चाहिए? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और सेक्रीफाइसिंग कौन होता है? ओल्ड पार्टनर, हेमंत एंड निशान। तो इन दिस क्वेश्चन यू विल फाइंड देयर इज नो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज गिवन, ठीक है, तो ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सो यू विल राइट टू हेमंत कैपिटल टू निशान कैपिटल, और उस 45,000 को 3:2 में शेयर कर लो। हो गया? तो बताइए फटाफट, हम लोग कैपिटल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका था, आप सब लोग को फटाफट कर लेना चाहिए था। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सोमेश करेंट अकाउंट 45,000, सॉरी सोमेश करेंट अकाउंट डेबिट 45,000 हो गया। यस सर। टू हेमंत कैपिटल अकाउंट टू निशांत कैपिटल अकाउंट, ओके, डन। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब आप करेंगे क्या कि अमाउंट कैलकुलेट कर लो, 45,000 को 3:2 में कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है? 27,000 एक का आ रहा है और एक का 18,000। 45 को 3:2 में कैलकुलेट करो बिकॉज दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ट्वेंटी 27 एंड 18 आ रहा है, 3/5 एंड 2/5 करेंगे ना 45 का। हाँ सर। यस, चलो हो गया ये क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर लेना, पिछली क्लास का वीडियो देख लेना, मैंने हिडन गुडविल का सारा स्टेप्स लिखवाया था, और जो मैंने ई लाइब्रेरी भेजा है बनाकर उसमें भी पिछले डेट वाइज उसको फिर से रिवाइज करना, और ये वाला करना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो क्या स्टूडेंट्स, बी रेडी विथ योर नोटबुक। आप जब भी क्लास करो पेन पेपर सब लेकर, तो आप सभी लोग
रेडी रहो और मैं बता रहा हूँ सुनते रहो। अगर आप मेरी बातों को सुनोगे नहीं, जो बता रहा हूँ उसे देखोगे नहीं, ध्यान से लिखोगे नहीं, तो आपको कुछ नहीं आ सकता। So now page 1, partners capital account. See, I am teaching you here ki how to prepare the partners capital account and what are the steps should be taken. So here students, you will see, I am showing you ki how to prepare partners capital account. So first of all, heading you will write the capital account or partners capital account. Any of them you can write. And new partners column would be in the last. देखो मैंने C को new माना है, तो C का new ऊपर से देखो आपको लास्ट में लिखा हुआ है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। सो क्लियर। अब यहाँ ध्यान रखो मैं जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट विद द ओपनिंग बैलेंस। तो बेटा देखो यहाँ बाई बैलेंस बीडी लिखा हुआ है ना। सो बाई बैलेंस बीडी ये ओपनिंग बैलेंस है किसका, ओल्ड पार्टनर का, ए और बी का, राइट। ए और बी हमारे लिए कौन है, ओल्ड पार्टनर है, तो इनका ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, राइट। अब सी जो है उसका तो ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं, उसका नील मतलब कुछ नहीं लिखना है उसमें। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। तो देखो बेटा ओपनिंग बैलेंस जनरली कैपिटल अकाउंट का लायबिलिटी में दिया होता है, बट कभी कभी क्वेश्चन में किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एसेट्स में भी दे सकता है, बड़ा रेयरली मिलता है, बट यू शुड नो इट ना। सो अगर कैपिटल डेबिट बैलेंस सॉरी एसेट साइड में किसी पार्टनर का, तो इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो उसको हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ब्रैकेट में मैंने लिखा है इफ डेबिट बैलेंस इज गिवन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। यानी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट्स में दिया हुआ है, तो हम इस साइड लिखेंगे टू बैलेंस बीडी जिस भी पार्टनर का होगा, और लायबिलिटी में दिया होगा तो इधर, यानी क्रॉस होता है, लायबिलिटी वाला इधर आता है और एसेट्स वाला इधर आता है, ध्यान से समझना। तो जनरली ओपनिंग इधर होता है। इसके बाद दूसरा स्टेप बेटा क्या लिखेंगे, याद रखो आप लोग जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा स्टेप पेन पेपर रखे हो तो आप लिख सकते हो। पहला स्टेप हम लेंगे कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखने का, टू राइट ओपनिंग बैलेंस। सेकेंड स्टेप लिखो रिकॉर्ड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड फिक्टिशियस एसेट्स। सो देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं है, यू नो ऑलरेडी। लायबिलिटी साइड में दिया रहता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, जिसमें जनरल रिजर्व होता है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व हो सकता है, WCR होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। और एसेट साइड में क्या होता है, जैसे ओल्ड गुडविल हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होती हैं। तो याद रखो लायबिलिटी में जो दिया रहता है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लाइक रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बिटवीन ओल्ड पार्टनर। और अगर एसेट साइड में दिया है लाइक ओल्ड गुडविल दिया है तो ओल्ड रेशियो में ये डेबिट में लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो एक एक करके जो भी चीजें दी है एक एक करके लिखना है। अब आते हैं तीसरा स्टेप लेते हैं, रिकॉर्ड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो तीसरी एंट्री करते हो क्लोजिंग एंट्री, उसी की बेस पे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन ओल्ड रेशियो बांट देंगे प्रॉफिट के केस में। अगर लॉस आता है तो डेबिट में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो सेम होगा, कोई एक चीज ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तीसरी एंट्री वाला। उसके बाद अगर कोई पार्टनर एसेट ले लिया है, सपोज दैट कोई पार्टनर ए कह रहा है कि ही विल टेक द फर्नीचर एट दिस वैल्यू, या बी कह रहा है ही विल टेक द इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी एसेट अगर कोई ओल्ड पार्टनर लेता है कैपिटल अकाउंट बनाते समय तो क्या करेंगे, यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू एसेट्स, एसेट्स मींस नेम ऑफ द एसेट लिखेंगे, और जो पार्टनर लिया उसके कॉलम में लिख देंगे। यहाँ कोई रेशियो नहीं होगा, जितने रुपए का एसेट लेगा वो एसेट की वैल्यू यहाँ पर लिख दी जाएगी। अगर ए ले रहा है तो ए में लिखेंगे, बी ले रहा है तो बी में, दोनों ले रहे हैं तो दोनों में, नहीं ले रहा है तो स्किप कर देंगे इसको। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, गुडविल का रिकॉर्ड करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पता है कि गुडविल जब नया पार्टनर जो लेकर आता है वो या तो कैश लाता है या तो काइंड में लाता है या तो नहीं लाता है ना। तो अगर वो कैश या काइंड में लाता है तो क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे इधर, राइट। लेकिन अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता है, इफ डज नॉट ब्रिंग इन कैश, तो हम क्या लिखेंगे, बाय सीज करंट अकाउंट। जैसा अभी अभी हिडन गुडविल में किया, सोमेश नया पार्टनर था, हिडन के केस में गुडविल नहीं लाता है नगद, तो उसमें करंट अकाउंट डेबिट किए, तो यहाँ पर बाय सीज करंट अकाउंट यानी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और पैसा लाता है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल।
तो ध्यान रखें, प्रीमियम फॉर गुडविल हम तभी यूज करेंगे जब कैश या काइंड कुछ आ रहा है बिजनेस में गुडविल के लिए, नहीं कुछ ला रहा है तो करेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और बांटेंगे उसी तरह सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जैसे बताया। इसके बाद नए पार्टनर का वो लिखेंगे हम लोग कैपिटल। तो देखो यहाँ नीचे दिख नहीं रहा है बेटा, थोड़ा सा वो ऊपर, एक मिनट मैं चेक करता हूँ, शायद कुछ मूवमेंट हो, चलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखो मैं बता देता हूँ, बाई कैश या बैंक अकाउंट लिखेंगे और सी के कॉलम में कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। सी के कॉलम में हम लोग कैपिटल लिखेंगे, याद रखना। अब एक चीज और बता दें आपको, यहीं पे अगर गुडविल का पैसा विड्रॉ करता है, देखें अगर शायद दूसरे पेज पे हो, लेट मी चेक, यस। तो आप देखो यहाँ सेकेंड पेज पे, अगर नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाया है उसे तो बाय प्रीमियम करके हमने रिकॉर्ड कर दिया था। अगर कह रहा है कि इफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो जो पार्टनर विड्रॉ करेगा मतलब जितना जितना, तो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिख देंगे अमाउंट ड्रॉन, जितना पैसा वो ड्रॉ कर रहा है, पूरा अमाउंट गुडविल का विड्रॉ कर रहा है तो जितना बटा है पूरा लिख देंगे, अगर हाफ कर रहा है तो हाफ हाफ लिखेंगे। और क्या नाम से यहाँ लिखेंगे, टू कैश या टू बैंक। तो जिस समय गुडविल का पैसा लाया था नया पार्टनर, उस समय अगर हम कैश में रिकॉर्ड किए तो कैश, चेक से किए तो बैंक, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स। तो यानी आप देखो पहला पेज में वापस जा रहा हूँ, पहले पेज पे, ये पहला पेज है, लास्ट वाला लाइन आपको जो नहीं दिख रहा है एकदम नीचे, सी डज नॉट ब्रिंग वाला जो लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे एक और है कॉलम, बाई कैश या बैंक, वो सी वाले कॉलम में कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा। अब जो ये गुडविल आया था इसको विड्रॉवल करने की एंट्री जो है वो नेक्स्ट पेज पे है, देखो यहाँ पे पेज नंबर 2, और यहाँ टू कैश या टू बैंक लिखा है, ठीक है। अब सब कुछ हो गया, अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो जनरली क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा होगा, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, वही टोटल हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद डेबिट में जितना चीज़ लिखा उसको घटाएंगे, यहाँ माइनस करके बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे जैसे लेजर में करते हैं। तो आएगा टू बैलेंस CD, और इस बैलेंस को हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस, राइट। तो अच्छे से समझ लो कि क्या क्या स्टेप लिखना है, अभी हम आगे आएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखो कि अब हम लोग को समझना है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक। ये एक क्वेश्चन है, एक मिनट, जस्ट लेट मी, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप सभी, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन ताकि आपके पास रहे और मैं बताता रहूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अनिरुद्ध दिख रहा है प्रॉपर? यस सर, तो थोड़ा टेक थोड़ा दिस, स्टक है सर, हाँ रुक आ रहा है जाएगा। सर। मैं एक्चुअली बेटा ये इलस्ट्रेशन है, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा और तो समझ में आ जाएगा। आप ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप टैली कर लो, ठीक है। ओके यहाँ सर, बुक का ही ओके क्वेश्चन सर। होगा, अगर टेक्स्ट बुक होगा डीके गोल का तो मिल जाएगा। हाँ सर, है सर। हाँ तो उसमें ये क्वेश्चन होगा, इलस्ट्रेशन ही है कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। सर इलस्ट्रेशन का नंबर नहीं दिख रहा है सर। नंबर नहीं दिखेगा, रुको जस्ट लेट मी चेक, आई एम टेलिंग यू। बैलेंस शीट आप देखो, अभी निकाल लो, एडमिशन चैप्टर निकाल लो, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, नया बुक होगा आपके पास तो। हाँ नहीं है सर। हाँ बेटा तो ठीक है, बस मैं बता दे रहा हूँ, 86,000 टोटल है ना। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 60 ओके सर। सभी लोग बुक में देख लो, 60 इलस्ट्रेशन नंबर है। तो ठीक है, आई थिंक यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यस, देखो सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा इसका एक मिनट जस्ट, हाँ यस बेटा, तो पूरा क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के पास। सो देखो जस्ट आई एम रीडिंग इट, you can tell it. A and B share the profit of a business in 5:3. They admit C into the partnership for 1/4 share, and in profits to be contributed equally by A and B. ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे क्या बता रहा है कि 1/4 के लिए आ तो रहा है C, लेकिन वो अपना शेयर किससे ले रहा है, A और B से इक्वली, क्योंकि A और B इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको, ठीक है, राइट। So on the date of admission of C, the balance sheet of the firm was as follows.
तो ए का कैपिटल दिया है 40,000, बी का कैपिटल इज गिवन 30,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 4,000, क्रेडिटर्स रुपीज 2,000, प्रोविडेंट फंड रुपीज 10,000, राइट। और मशीनरी 30,000, फर्नीचर 20,000, स्टॉक 15,000, डेटर्स 15,000, बैंक 6,000। मिल गया सभी को, क्वेश्चन मिल गया होगा। पेज नंबर अगर नहीं मिला तो मैं बता देता हूँ, 4.65 पेज नंबर है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन यू विल सी, टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन वर एज फॉलोज, सी विल ब्रिंग रुपीज 30,000 फॉर a share of capital and goodwill, and goodwill of the firm has been valued at 3 years purchase of the average super profit of last 4 years. Now average profit of the last 4 years are 20,000, okay, while the normal profit that can be earned with the capital employed was 12,000. So you need to calculate goodwill also. You have studied in change in profit sharing ratio. ठीक है ना। थर्ड, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाई 12,000। सो अंडर वैल्यूड अगर एसेट्स होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट, मालूम है। एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 13,000, तो लॉस हो रहा है यहाँ। प्रोविडेंट फंड भी रेज्ड, तो लॉस होगा 1,000 से। नाउ क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 6,000, तो क्रेडिटर 6,000 से अनरिकॉर्ड था, नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड इट, सो लॉस होगा, ये भी लायबिलिटीज बढ़ रहा है। सो यू आर सपोज टू प्रिपेयर revaluation account, partners capital account, and new balance sheet of A, B and C. So student, now see, just I am going to prepare the solution. If you have book you can tell it. So see, first of all I have prepared here revaluation account. So as in the question it is saying that stock will be, तो क्या कह रहा है, देखो फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाई 12,000, तो फर्नीचर देखो प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यू नो डेबिट एंड क्रेडिट, तो रिवोल्यूशन में प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में। सो फर्नीचर की वैल्यू अंडर वैल्यूड है 12,000 से, तो क्रेडिट कर दिया बाई फर्नीचर। फिर उसके बाद आप देखोगे वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड टू 13,000, तो पहले से बैलेंस शीट में 15,000 का स्टॉक दिया हुआ है और उसकी वैल्यू अब घटाकर 13,000 कर दी गई, तो लॉस हो गया 2,000 रुपए का, क्योंकि ऐसे डिक्रीज हो रहा है। प्रोविडेंट फंड पहले से क्वेश्चन में 10,000 का दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है इट इज टू बी रेज्ड बाय 1,000, प्रोविडेंट फंड को 1,000 से बढ़ाना है, तो प्रोविडेंट फंड क्या है, लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है तो लॉस होगा, ठीक है। क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटी होता है, यू नो, पहले से 6,000 रुपए का क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड था, मींस रिकॉर्ड नहीं था, तो अब हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो रिकॉर्ड करेंगे तो 6,000 से लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, तो ये भी लॉस हो रहा है, राइट। तो हमने सारा रिकॉर्ड कर लिया रिवोल्यूशन का। अब हम कंपेयर करेंगे बैलेंस शीट, चूंकि अकाउंट है ये तो बैलेंसिंग करना होता है हमको, तो पहले देख रहे हैं कि क्रेडिट में 12 है और डेबिट में 6 + 1 + 2 यानी कि 9,000 है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो यही दोनों साइड लिखेंगे, यहाँ 12,000 12,000, अब 12 में से इसको 9 को माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 3,000। दिस विल बी कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, एंड क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट वाला पोर्शन ज्यादा है, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। याद रखो ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन में 5:3 दिया है, तो 5:3 यानी 5/8 एंड 3/8 करेंगे तो इतना इतना आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यू टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ इट। बुक है तो जरूरत नहीं है, जिसके पास नहीं है अभी वो ले सकता है। नेक्स्ट, तो देखो इसमें अब आगे के प्रोसीजर के लिए हमें पहले गुडविल की जरूरत पड़ेगी बेटा, तो गुडविल क्वेश्चन में क्या बोला है कि सुपर प्रॉफिट के आधार पे निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 20,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 12,000। व्हेन यू विल सी इन द क्वेश्चन बोथ प्रॉफिट गिवन, एवरेज एंड नॉर्मल बोथ, सो माइनस कर दो तो 8,000 क्या आ गया आपका, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल कैसे निकालना है, तो बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर करेंगे तो गुडविल आ जाएगा, राइट। तो 8,000 रुपया हमारा सुपर प्रॉफिट है, 3 ईयर का मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो 24,000 आ गया गुडविल। अब करना क्या है कि जब 24,000 रुपया फर्म की गुडविल आ गई तो सी इज गेटिंग एडमिशन एज ए न्यू पार्टनर फॉर हाउ मच शेयर, 1/4 शेयर, ओके। तो सी ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जैसा कि लिखा है कि सी अपने हिस्से का गुडविल नगद लाएगा, तो देयरफॉर ही ब्रिंग्स इन, तो कितना लाएगा, इसलिए 24,000 पूरे फर्म की गुडविल है और उसका शेयर 1/4 करेंगे तो कितना आया 6,000, ठीक है, यानी सी विल ब्रिंग 6,000, राइट।
और विच इज इंक्लूडेड इन द टोटल अमाउंट ऑफ 30,000। तो आप क्वेश्चन में पढ़ो वो 30,000 रुपया लाया है, क्या बोला है, सी विल ब्रिंग रुपीज 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। पहले इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब कि सी ने 30,000 रुपए में कैपिटल और गुडविल दोनों का पैसा ला कर दिया है। तो हम गुडविल का पैसा पता कर लिए कि 6,000 है, तो कैपिटल कितना होगा उसका, 24,000 होगा, राइट। सो अब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो और ये 6,000 रुपया बटेगा किस में, ए और बी में, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि इक्वली है। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहला स्टेप अभी मैंने पढ़ाया, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। तो देखो लायबिलिटी में ए और बी का कैपिटल 40 और 30 दिया होगा, लिख लिया। सी के कैपिटल में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ही इज द न्यू पार्टनर। अब उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे जाते हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया हमने, ठीक है, क्योंकि कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि हाउ मच क्लेम हैज बीन रेज्ड, तो कोई क्लेम नहीं है WCR के लिए, तो पूरा का पूरा फ्री हो गया और बांट देंगे। अब आते हैं दूसरा स्टेप रीवैल्यूएशन पे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से ए को मिला है 1875, बी को मिला है 1125, तो बाय रीवैल्यूएशन लिख दिया। अब इसके बाद नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, तो बाय बैंक यहाँ कैपिटल 24,000 हो गया, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाया है वो ए और बी में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ गया इक्वली, राइट। यहाँ कोई गुडविल का विड्रॉवल नहीं है, ना तो कोई डेबिट आइटम है ऐसा, ना तो फिक्सेशियस एसेट है, तो बस टोटल कर देंगे, यहाँ टोटल कर दिया ABC का, तो यही टोटल यहाँ लिखेंगे। अब इधर कुछ घटाने को नहीं है, तो टू बैलेंस CD सेम अमाउंट कॉपी कर देंगे, क्योंकि कुछ माइनस करने को नहीं है। सो कैपिटल अकाउंट बेटा तैयार हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Yes, now opening balance sheet. Opening balance sheet means here after getting admission of C, the new balance sheet is to be prepared. That is called opening balance sheet. जब भी कभी नए पार्टनर के एडमिशन के बाद तुरंत हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो रिवाइज बैलेंस शीट, उसको ओपनिंग बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। सो देखो पहले से मशीन कितने का था, सब कुछ जो था उसी के साथ हमें करना है। तो पहले से मशीन आपके पास 30,000 का था और रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एज इट इज दिखा दिया। फर्नीचर आपका पहले से 20,000 रुपए का था, बट क्वेश्चन में बोला था इट वाज अंडर वैल्यूड बाई 12,000, तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी 32,000, क्योंकि अंडर वैल्यूड मीन्स होता है कि पहले से इसका वैल्यू कम लगाया गया था, 12,000 रुपये कम लगाया गया। तो अब जब सही वैल्यू दिखाएंगे तो 12,000 रुपये ऐड करेंगे, तो 20 + 12 32,000 हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक पहले 15,000 का था, इट वाज रिड्यूस टू 13,000, तो 13 पे दिखा दिया। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो एज इट इज दिखा दिया। बैंक में चेंज होगा, तो बैंक में देखो पहले से आपके पास 6,000 रुपया था पुराने बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में जो दिया, और 30,000 रुपया सी लेकर आया, जिसमें 24,000 कैपिटल और 6,000 गुडविल, तो 30 और +6 पहले से था, तो हो जाएगा 36,000, ठीक है। अब आते हैं क्रेडिटर्स में। तो क्रेडिटर्स पहले से तुम्हारे पास कितने रुपए का था, आप देखो कि क्वेश्चन में 2,000 रुपए का, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहा है देयर वाज अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹6,000, तो 6,000 + 2,000 इन दोनों को ऐड करेंगे 8,000 हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड 10,000 का था, 1,000 रुपये से इसको इंक्रीज किया गया है, तो हो जाएगा 11,000। कैपिटल अकाउंट में जो अभी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बनाया हमने, ए का कितना है, बी का कितना, सी का कितना है, उसी को लिखना है। अब टोटल कर देंगे तो दोनों साइड हमारा इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे सॉल्व किया गया। जो स्टेप है, एक क्वेश्चन से तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, जो रेगुलर क्लास कर रहा है उसी को आएगा, ठीक है। और मैं भी इसका और भी क्वेश्चन है, जब हम लगवाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद से नोटबुक पे पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना भी बता दे, आपको नहीं आ सकता। इसलिए गलत सही आप प्रैक्टिस करो। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, पहली बार में नहीं सीखते हो, गिरते उठते हो ना, ठीक उसी तरीके से पढ़ाई में भी, अकाउंटेंसी में पहले गलत सही लगाते रहो, जब लगाते लगाते खुद ही आ जाएगा, आप पूछते रहो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। धनंजय लेट से ज्वाइन किए, धनंजय? यस सर। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 60 है, ठीक है, गोयल के बुक से, आप एक बार उसको देख लेना कल का। और जितना वीडियो मैंने ई लाइब्रेरी बना के भेजा हुआ है, आप उसको देखो, सारा वीडियो मिल जाएगा उसमें, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है। आप चाहे क्लास किए हो या नहीं, सारा वीडियो उसमें, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को।
देख लो, इसी का थोड़ा सा और हम बता देते हैं आप लोग को आसान बनाने के लिए। ध्यान से समझना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका जो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो, एक चीज मैं ये बता रहा हूँ आपके सामने, ये कुछ आपको शो करेगा कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, आपके स्क्रीन पे होगा, देखो बेटा, कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं हम लोग तो कैसे बनाते हैं। तो ये देखो नीचे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है और इसमें न्यू पार्टनर को कौन है, सी है। अब जब बैलेंस शीट में ये सारी चीजें रहती हैं अक्सर, तो इसमें से जो भी चीज कैपिटल में जाना होता है तो कहाँ ले जाते हैं, तो देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, लायबिलिटी वाले साइड के आइटम को कहाँ दिखाया है, क्रेडिट में, कैपिटल में, और एसेट्स वाले आइटम को इधर। तो इसमें से क्या क्या इधर जाएगा, देखो जैसे जनरल रिजर्व इधर जाएगा, WCR इधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस इधर जाएगा, ठीक, बस। और इधर से और एक चीज जाएगा इधर से, देखो कैपिटल ए और बी का कैपिटल है तो इधर जाएगा, ठीक है। अब इधर से क्या होगा, गुडविल इधर है तो इधर लिखेंगे ओल्ड रेशियो में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इधर है एसेट्स में तो इधर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इधर है अगर से दिया हुआ तो इधर लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल में डेटर वगैरह तो लिखते नहीं। अब रहा कैपिटल, तो देखो कैपिटल यहाँ भी दिया है और यहाँ भी दिया है, तो मैंने बताया कि कैपिटल चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, आप जब इसमें लिखोगे तो क्रॉस जाएगा, इधर वाला कैपिटल इधर जाएगा और इधर वाला कैपिटल इधर जाएगा। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि दोनों साइड कैपिटल दिया हो, कैपिटल कोई एक साइड ही दिया होगा, या तो लायबिलिटी में दिया होगा या तो एसेट्स में, बट हाँ एसेट्स में जनरली नहीं मिलेगा, क्योंकि एसेट्स में डेबिट बैलेंस होता है तभी जाएगा, और ये किसी एक पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। मान लो कि ए बी है, तो ए का कैपिटल क्रेडिट में दिया है, बी का कैपिटल डेबिट में, तो ए का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी इधर लिखेंगे और बी वाले का इधर लिखेंगे बाय बैलेंस टू बैलेंस बीडी, कब, जब इधर दिया होगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट एसेट्स में रेयरली मिलेगा, नहीं दिया होता है, इसलिए ध्यान रखो। क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी में होने का मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। एसेट्स में कैपिटल दिखाने का मतलब कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, इसलिए उसको डेबिट में दिखाते हैं। तो ये याद रख लो, दिमाग में बैठा लो, अगर बैलेंस शीट है तुम्हारे सामने, इधर वाला चीज इधर, इधर वाला इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब कुछ चीजें और बताते हैं, फिंगर्स टिप पे आप लर्न कर लो कि जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन का या कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टेप्स क्या होता है, ठीक है। सो आप देखेंगे बेटा स्टेप्स आप लोग, हालांकि यहाँ तक होमवर्क पहले आप लिख लो, होमवर्क रहेगा, मैं स्टेप्स बता देता हूँ, मैं इसका स्टेप फिर से रिपीट कर दूंगा बाद में। जस्ट टेक दी होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 59A to 72, ये होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसके साथ मैं कुछ स्टेप्स शेयर कर रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प होगा, मिलेगा उसे बनाने में, ठीक है। सो देखो यहाँ पे, लेट्स ऑन फिंगर टिप द स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके स्टूडेंट। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। पहले सबसे हम क्या लिखते हैं, ध्यान रखो, जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं टू राइट द ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, अभी पढ़ाया था। दूसरा स्टेप हम लोग लिखते हैं रिकॉर्ड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस, ओल्ड गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स ओनली, ठीक है। अभी बांटा था ना, जैसे WCR जनरल रिजर्व क्रेडिट में गया और फिक्टिशियस एसेट गुडविल वगैरह डेबिट में जाता है, एसेट्स कैपिटल अकाउंट के, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। फिर रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देते हैं कैपिटल अकाउंट के बाई रिवैल्यूएशन लिखकर, लॉस होता है तो टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। तो स्टेप याद रखो कि कौन सा पहला स्टेप, पहले जब हम स्टेप वाइज करेंगे ना तो पहले फोकस सिर्फ उस स्टेप पे देना है, पूरे क्वेश्चन के स्टेप पे नहीं। जब एक स्टेप फिनिश हो जाए या उस स्टेप के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तभी हम स्किप करके आगे जाएंगे। फिर रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स टेकन ओवर बाय एनी ओल्ड पार्टनर, ठीक है, अगर कोई पार्टनर एसेट लिया तो उसका रिकॉर्ड करेंगे, बताया था आज हमने। फिर रिकॉर्ड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, ये भी बता दिया था। अब आते हैं हम लोग लर्न ऑन फिंगर्स टिप द स्टेप्स टू पास जर्नल एंट्रीज। 1 मिनट बेटा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो पहले सभी लोग, ये जो कैपिटल अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, 5 स्टेप्स व्हाट आई हैड रिटन ओवर हियर, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन सॉल्व, इट विल हेल्प यू। डन अनिरुद्ध? यस सर, ले लिया। सो नाउ हाउ टू पास द जर्नल एंट्री, तो आप सभी लोग को पता है कि कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, लेकिन जब पूरा क्वेश्चन आ जाता है फुल फ्लेज्ड तो द स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज कि फ्रॉम वेयर दे शुड स्टार्ट और कब वो एंड होगा, पता नहीं चलता, कंफ्यूज रहता है और टाइम कंज्यूम होता है। तो इसके लिए मैं स्टेप्स बना दिया हूँ,
जिसको आप याद कर लो स्टेप्स को कि कैसे कैसे कब क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कैसे करते हैं ओल्ड इशू में। फिर रिकॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन, थ्री एंट्रीज मेनली होती है रिवोल्यूशन में। पहला एंट्री फॉर प्रॉफिट, दूसरा लॉस, तीसरा क्लोजिंग एंट्री, ठीक है। फिर रिकॉर्ड ऑफ एसेट टेकन ओवर बाय एनी ओल्ड पार्टनर, कैसे करते हैं देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। कभी कोई पार्टनर एसेट लेता है तो उसकी एंट्री देखो, डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मींस जो पार्टनर ले रहा है एसेट उसका कैपिटल डेबिट, एंड टू क्रेडिट कर देंगे एसेट्स अकाउंट, मतलब जिस एसेट्स को ले रहा है। मान लो मिस्टर ए ओल्ड पार्टनर है, फर्नीचर ले रहा है 5,000 रुपये का, तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 5,000, ठीक है। तो अब आता है रिकॉर्ड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो इतना रिकॉर्ड देखो करना है, एंड नाउ यू विल अंडरस्टूड कि हाउ इज टू बी रिकॉर्डेड एंड योर क्वेश्चन इज ओवर और नॉट। सो जितना स्टेप अगर कर लिया पूरा तो योर क्वेश्चन इज फिनिश्ड, ओके। सो ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिर से कैपिटल अकाउंट का प्रैक्टिस करेंगे। बट आज जो मैंने पढ़ाया आप उसके बेसिस पे प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को फिर से देखो, और इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने कल के या परसों जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसका लिंक भी मैंने सेंड किया है, ठीक है। तो आप उसे कर लेना, ओके स्टूडेंट्स। तो आप लोगों की कोई क्वेरीज है अभी, यू कैन आस्क।